Good morning everyone. Class 8, chapter number 12, exponents and powers, exercise 12.1. As we have done 3 questions in our previous video, so now we will start from 4th question. We have 2 parts of this question, right? So let's start. First question, here we have 8 raised to power minus 1 multiply 5 raised to power 3 upon 2 raised to power minus 4. So first of all, we will find out 8's factor, right? We can also write it like this, 2 raised to power 3, okay? We can also write 8 as 2 multiply 2 multiply 2, right? So it will become 2 raised to power 3, ठीक है. तो हम 8 को 2 raised to power 3 यहाँ पर लिखेंगे. So it will become 2 raised to power 3 whole power minus 1 multiply 5 raised to power 3 upon 2 raised to power minus 4, right? Now here we can use, अगर हमारे पास a raised to power n है और बाद में पावर m है, so we will write a raised to power nm, right? So it will become 2 raised to power minus 3 multiply 5 raised to power 3 upon 2 raised to power minus 4, right? यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग, ये साइड पे जो पावर्स हम ये आइडेंटिटीज यूज करते हैं एज प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग दिस, ठीक है. सो उसके बाद एवरीवन हमें पता है कि अगर a रेज टू पावर n m अपॉन a रेज टू पावर m है, सो वी कैन डू a रेज टू पावर n माइनस m, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 नीचे भी है ऊपर भी है, सो इट विल डिवाइड ना. सो 2 रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है. सो माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 2 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3, राइट. इट विल बिकम 2 रेज टू पावर 4 माइनस 3 1 मल्टीप्लाई 5 raised to power 3. So we can solve it. 2 multiply 5 multiply 5 multiply 5. Right here 5 5s are 25. 25 5s are 125. 125 multiply 2. It will become 250. That is answer. Right? Easy question. Now next part. Second question. I'm going to erase this. ठीक है? You can also write these things. ये बहुत important होती हैं. इससे पता चलता है कि आप लोगों को questions आते हैं. Right? So here we will do, it's very easy question everyone. As power is negative, so what we will do, we will reciprocate it, right? 5 raised to power minus 1, it will become 1 upon 5. Power 1 है तो 5 भी चलेगा. This will become 1 upon 2, bracket close, multiply, and this will become 1 upon 6. Nothing is there, बहुत easy है, सारे multiply हैं. We will just multiply, first bracket solve करेंगे. 5 multiply 2, this is 1 upon 10 multiply 1 upon 6, or it will become 1 upon 60. So this is the answer. Very easy question, right? So let's do fifth question. Here we have fifth question everyone. This is also very easy question. As हमें पता है यहाँ पर हम क्या use करेंगे, using a raised to power m divided by a raised to power n. So it will become a raised to power m minus n, right? So here bases are same, right? So we will subtract the minus minus, यहाँ पे minus 3 is equals to 5 raised to power 5, right? We can also do like this. So here bases are same, right? So it means exponents will also be same, मतलब ये दोनों numbers same हैं तो इसका मतलब powers भी same होंगी. So we will just compare their exponents. Compare exponents, right? It will become m minus minus plus 3 is equals to 5, right? हमने exponents compare कर लिए, यहाँ पे plus हो रहा है, इधर जाके क्या होगा subtract, so it will 5 minus 3 and m is equals to 2. This is the answer. Very easy question, right? So let's do sixth question. So here we have this question, sixth first part, right? As power is negative, so what we will do, we will do reciprocate, right? रेसिप्रोकल करेंगे हम 1 upon 3 का, इट विल बिकम, देखो अगर 3 का रेसिप्रोकल करेंगे, अगर 3 का रेसिप्रोकल लिखना है हमें तो वो होगा 1 upon 3, और सिमिलरली 1 का रेसिप्रोकल लिखना है तो होगा 3, ठीक है. रेसिप्रोकल ऐसे ही होता है. और 1 upon 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3, इट विल बिकम 3, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, देन माइनस इट विल बिकम 4, राइट. कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही, पावर बाहर माइनस. सो हाउ वी विल डू, 3 minus 4, दिस विल बिकम -1, इसको क्लोज ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं, पावर विल बी नेगेटिव. अगर पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करेंगे, इट विल बिकम 1 upon -1, राइट.
So 1 upon minus 1 is also minus 1. So minus 1 is the answer. Simple, right? So let's do इसका second part, right? I'm going to erase this board. It's very easy everyone. 1 upon 3 का रेसिप्रोकल किया 3 बन गया, 1 upon 4 का रेसिप्रोकल 4 बन गया, 3 minus 4 minus 1, पावर नेगेटिव है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, 1 upon minus 1 हो गया ये, 1 upon minus 1 is also minus 1, so minus 1 is answer, right? So let's do इसका second part. Its second part is 5 upon 8 raised to power minus 7 multiply 8 upon 5 raised to power minus 4. So how we will do everyone? minus 7 है so it means हमें रेसिप्रोकल करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मेथड है, 8 upon 5 होल पावर हो गई 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 8 5 upon 8 और होल पावर हो गई 4, 5 upon 8 का रेसिप्रोकल 8 upon 5, 8 upon 5 का 5 upon 8. Now we can do like this using here a upon b raised to power, अगर m है तो हम इसे लिख सकते हैं a raised to power m upon b raised to power m, right? तो यहाँ पे सेम वही यूज करेंगे, ये बन जाएगा 8 raised to power 7 upon 5 raised to power 7 मल्टीप्लाई 5 raised to power 4 upon 8 raised to power 4. Now ऊपर नीचे नंबर्स हैं एवरीवन, अगर यहाँ पर a upon n upon a upon m है तो ये बन जाएगा a raised to power n minus m, ठीक है? तो ऊपर नीचे हैं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा इधर आके, सो इट विल बिकम 8 raised to power 7 minus 4 and here it will become 5 raised to power 7 minus 4, simple, right? So यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 raised to power 3 and here it will also become 5 raised to power 3, right? So we have to solve it. Okay, we have to solve it here. So यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं, ये बन जाएगा 8 multiply 8 multiply 8 upon 5 multiply 5 multiply 5. 8 8 is 64, 64 multiply 8 is 512 and 5 5 is 25, 25 multiply 5 is 125. So this is the answer, right? Done. So let's do 7th question. In 7th question we also have two parts. So let me write 7th question. So let's start 7th question, its first part here. Everyone, first of all we will find the factors of these numbers. यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 10 है. So 25 को हम लिख सकते हैं 5 multiply 5 और we can write 5 raised to power 2 and 10 को हम लिख सकते हैं 5 multiply 2, right? तो ये नंबर्स हम यहाँ पे लगाएंगे अभी. So 25 we are going to write 5 raised to power 2 multiply t raised to power minus 4 upon 5 raised to power minus 3 multiply 5 multiply 2 multiply t raised to power minus 8, right? So first of all हम ये सॉल्व करेंगे. यहाँ पे अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होंगी, पावर्स ऐड, मतलब कि यहाँ पर अगर दो नंबर अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं रेस्ट पावर m मल्टीप्लाई a रेस्ट पावर n, इट विल बिकम a रेस्ट पावर m प्लस n, राइट? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ऐसे रहने देंगे मल्टीप्लाई t रेस्ट पावर माइनस 4, तो यहाँ पे पावर्स प्लस हो जाएंगी, ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई t रेस्ट पावर माइनस 8. यहाँ पे पावर्स 5 और ये पावर्स 1 ही है, राइट? अगर कुछ ना हो तो उसका मतलब 1 होता है, तो हम यहाँ पर भी ऐसे 1 लगा सकते हैं, मर्जी हमारी. ओके, सो इट विल बिकम 5 रेज्ड पावर 2 मल्टीप्लाई t रेज्ड पावर माइनस 4 अपॉन 5 रेज्ड पावर माइनस 3 प्लस 1 एवरीवन, प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बिकम माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाई t रेज्ड पावर माइनस 8. डन यहाँ तक. अब उसके बाद ये 5 देखो डिवाइड हो रहे हैं और ये वाला t भी डिवाइड हो रहा है, सो वी विल राइट हियर using a raised to power m divided by a raised to power n, it will become a raised to power m minus n, right? तो वही यहाँ पर करेंगे हमें 5 raised to power 2 माइनस, मैं आगे करती हूँ, let me do this next here. So I'm going to erase these numbers. आप लोग ऐसा लिख सकते हो एवरीवन, ठीक है? बहुत सही होता है यहाँ पे लिखना ऐसा.
मार्क्स अच्छे मिलते हैं. आई एम गोइंग टू इरेज इट. आप लोगों को लिखना है, ठीक है. सो हियर इट विल बिकम 5 रेज टू पावर 2. नीचे है माइनस, सो माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई, अब ये भी ऊपर आ जाएगा, टी रेज टू पावर -4 था, नीचे है -8, सो माइनस माइनस 8 और ये 2 नीचे ही रहेगा ऐसे, 2 रेज टू पावर 1, राइट. द माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 5 रेज टू पावर 2 माइनस 5 रेज टू पावर 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 4, राइट. मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर, चलो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 + 2, यहाँ पे लिख देते हैं -4 + 8, राइट, अपॉन 2. सो इट विल बिकम 5 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर 4, राइट, प्लस माइनस माइनस 8 - 4, it will become 4 upon 2. This is the answer. Let me see. They have 12.1, right? So hence this is the answer, everyone. They have also solved it. 5 raised to power 4, it will become 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply t raised to power 4 upon 2. So everyone, 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625. So it will become 625 t raised to power 4 upon 2. This is the answer. Done. So let's do next question. So here this is the 7th second part, right? So as we have these numbers 10, 125 and 6 raised to power -5, so we will factorize them. So what we will write, in the place of 10 we can write 5 multiply 2. In the place of 125 we can write 5 multiply 5 multiply 5. So it will become 5 raised to power 3, right? And in the place of 6 we can write 3 multiply 2. Done. So let me write these numbers here. So it will become 3 raised to power -5. On the place of 10 we will write 5 raised to power 5 raised to power -2 multiply 2 raised to power -2 multiply 5 raised to power 3. ये powers everyone, no, it will become 5 raised to power -5 and 2 raised to power -5. ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है आप लोग ध्यान से देखो. यहाँ पर मैंने 10 रेज टू पावर -5 था, उसकी जगह मैंने लिख दिया है 5 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -5, ये लिखा, ठीक है, अपॉन 5 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 रेज टू पावर -5 की जगह मैं लिख दूंगी 3 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -5. सो इट विल बिकम 3 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -5, राइट. नाउ एवरीवन, हमने फैक्टराइज कर लिया. क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऊपर नीचे वाले नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या होंगी, उनकी पावर्स, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. यहाँ पे 5 और 5 है, ठीक है, तो 3 रेज टू पावर -5 सेम एज इट इज मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -5 अपॉन तीनों अलग हैं, यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे 5 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -5, राइट. तो यहाँ पे बन जाएगा 3 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर प्लस माइनस माइनस, इट विल बिकम -2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -5 अपॉन 5 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -5. अब देखो एवरीवन, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो ऊपर नीचे सेम है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर ये आपस में एडिशन में कुछ होता तब हम इसको कट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है. और हम इसको ऊपर लग जाके भी कट कर सकते हैं, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पावर 0 भी हो सकती है. अगर पावर 0 है सो इट मीन्स 1, ठीक है. तो चलो ऊपर ही ले जाते हैं, सिंपल. आई एम गोइंग टू रेज दीज नंबर्स. सो इट विल बिकम, अब देखो 3 ऊपर है नीचे है, सो 3 रेज टू पावर -5 -5 हम कट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं. जैसे कि ये देखो मल्टीप्लाई है तो इतना, ओके लेट्स डू दिस. मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर -2, यहाँ पे क्या है 5 रेज टू पावर -2 -7
फिर है 2, 2 रेज टू पावर -5 -5, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, नीचे वाली पावर्स, क्योंकि नीचे नंबर थे डिवाइड हो रहे थे, माइनस किया। सो माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 5 रेज टू पावर -5 + 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर -2 + 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -2, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 रेज टू पावर -5 + 5। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 0। अब 2 रेज टू पावर 0 क्या होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1, सो इट विल बिकम 5 रेज टू पावर 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्या किया मैंने, आप लोग ध्यान से समझो, दोबारा समझाती हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, ओके यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन था 10, 125 और 6 के फैक्टर्स बना लिए। 10 को लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 2, 125 को लिख दिया 5 रेज टू पावर 3, 6 रेज टू पावर -5 था, इसको लिख दिया 3 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -5। अब क्या किया, जो नीचे नंबर्स, ऊपर नंबर्स थे 5 रेज टू पावर -5 और 5 रेज टू पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -5 + 3 इट विल बिकम 5 रेज टू पावर -2। अब उसके बाद जो नीचे नंबर से एवरीवन डिवाइड होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये यूज़ किया, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे यूजिंग a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m, इट विल बिकम a रेज टू पावर n - m। ये हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, दिस इज माइनस। तो अभी ये 3 रेज टू पावर -5 था, यहाँ भी 3 रेज टू पावर -5 था, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, -5, फिर 5 रेज टू पावर -2 था, नीचे -7 था, -7, 5 रेज टू पावर -5, -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, पावर जीरोस हो गई, पावर 0 होती है किसी भी नंबर को, दैट इज 1, राइट। तो 5 रेज टू पावर 5 इज आंसर। Hence 12.1 exercise is complete now everyone. So if you want to see previous video of this exercise or you want to see the coming videos, you can subscribe my channel Mathematics Prashar, and if you have any other query, please contact me. Thank you so much everyone.